بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینلز کے ویورز کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ اور جو شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی جانی پہچانی ہے، اور ہم وائی صاحب سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ہمارے اسٹوڈیو تشریف لایا کریں، تو وہ آج تشریف لے آئے ہیں۔ اور ان کا جو پاکستان کی سیاست ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی نبض پہ ہاتھ ہے، ایسے سیاسی تجزیہ خوبصورت کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہی ہیں آپ کے ہزاروں کمنٹس بھی آتے ہیں۔ تو بھائی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو آج آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایک تو ان دنوں میں واقعہ ہوا ہے کوئٹہ اور ہزارہ والا واقعہ، اس کے اوپر اظہار خیال آپ نے کرنا ہے، اور حکومت کی جو بے حسی ہے، اور یہ جو دوسرا سوال آپ سے ہم بعد میں کریں گے، پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا اظہار خیال کریں۔ ملک صاحب، ایکچولی یہ ہزارہ کی کمیونٹی جس کو حکومتوں نے ان پہ بار بار حملوں کی وجہ سے ایک علاقے میں پابند کیا ہوا ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، حالانکہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ کسی ایک طبقے کو، ایک کمیونٹی کو میل، 1.5 میل یا کلومیٹر کے اندر اسے پابند کر دیا جائے۔ وہ جب باہر اگر روزمرہ کے حساب سے وہ باہر نکلیں، اپنا کام کریں، پڑھنے جائیں، ان کے بچے ان کے مزدوری کریں، تو یہ ایک روٹین سیٹل ہو جائے۔ لیکن یہ وہاں اجنبی کے طور پہ، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور پاکستان کے عوام کے علم میں ہے کہ یہاں پر بہت تھوڑی ایک کمیونٹی یہ شیعہ سنی فساد پھیلانے کے در پہ رہتی ہے، تو وہ جس وقت باہر جاتے ہیں کبھی کبھار مزدوری کرنے، تو یہ ان پر حملہ کر کے اور ایسے بروٹلی انہیں ذبح کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی انہیں مزدوروں کو جو کان نہیں کر رہے تھے، مطلب کوئلہ نکال رہے تھے، ان کے 10 لوگ انہوں نے صرف ہزارے کے لوگ جن کا مسلک شیعہ برادری تھا ان کو علیحدہ کر کے ان کو فائرنگ کی، ان کو قتل کیا، پھر ان کے گلے کاٹے۔ تو وہ اب چونکہ گزشتہ کئی سالوں سے وہ ظلم کا شکار ہیں، ان کے کوئی 2000 لوگ، ان کے کئی فیملیز ایسی ہو گئی ہیں کہ جن کے پاس مرد کوئی نہیں رہا، خواتین ہی خواتین ہیں۔ اور اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ 6 خواتین، نوجوان بچیاں، ان کے بھائی کو، 2 بھائی ان کو قتل کر دیے، اور باپ پہلے قتل ہو چکا تھا، تو ان کے گھر میں کوئی مرد جنازہ اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ ماضی میں بھی یہ ہوا کہ 100 لوگ شہید ہوئے، تو اس پر وہ پھر ڈیڈ باڈیز لے کر وہ احتجاج کرتے ہیں، اور ان کی یہ خوبی ہے، انہیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں، اور وہ 100 ڈیڈ باڈیز لے کر پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بیٹھ گئے کہ جی وزیر اعظم آئے، تو وزیر اعظم جو پیپلز پارٹی کا راجہ پرویز، وہ اس وقت وزیر اعظم تھے جب گیلانی جو نااہل قرار دے دیا چیف جسٹس، اشرف پرویز، تو اشرف پرویز جو تھے وہ وہاں آئے، اور وہاں ڈیڈ باڈیز کے جو وہاں احتجاج کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے انہوں نے افسوس کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو۔ اس دفعہ ان کے 11 لوگ شہید ہوئے، تو انہوں نے کہا جیسا کہ ماضی میں سربراہ مملکت آتے رہے، تو انہوں نے اس دفعہ سربراہ مملکت جو تھا وہ عمران خان تھا، انہوں نے کہا وزیر اعظم تشریف لائیں، ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں۔ ایک تو وہ ڈیمانڈز سنیں، دوسرا ہم پر بطور وزیر اعظم ہمارے ہاتھ رکھیں ایک سر پہ، کہ تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارا بھی کوئی اس پاکستان میں موجود ہے کہ جو ہم سے ہمدردی کرتا ہے۔ تو انہوں نے، عمران خان صاحب نے پہلے تو اس پہ غور ہی نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی آپ پہلے جنازے دفن کرو تو پھر میں آؤں گا۔ اور مطلب یہ ہے کہ جنازے دفن ہونے کے بعد تمہاری ضرورت کیا ہے؟ وہ تو اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، آپ کی موجودگی میں ہم جنازے جو ہیں دفن کریں، اور ساری دنیا کو پتہ لگے کہ پرائم منسٹر جو ہے
जनाजे में शरीक है। इन्होंने यहाँ तक कहा कि एक तरफ बच्चियाँ जनाजे लेके बैठी हुई हैं, एक तरफ बूढ़े लोग जनाजे लेके बैठे हुए हैं। ये इन्होंने कहा कि आप मुझे ब्लैकमेल करना है। जुल्म खुदा का, एक जुल्म खुदा का, एक ऐसा शख्स जिसका ना को माजी सियासी है, ना को माजी ऐसा है जिसके ऊपर फख्र किया जा सके, और वो कह रहा है उन लोगों को कि जो अपनी डेड बॉडीज लेके बैठे हुए हैं कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ये जुल्म है, इससे ज़्यादा तौहीन अमेज़ बात हो कोई नहीं सकती। भाई तुम्हारी क्या शख्सियत है कि तुम्हें कोई ब्लैकमेल करेगा। आखिर उसको सारे अपोजिशन मरियम नवाज गई और बिलावल भुट्टो गया, उन्होंने सबने उन्हें समझाया कि तुम जिस शख्स को बुला रहे हो वो तोहम परस्त है, नंबर 1, वो अनापरस्त है, नंबर 3 खुद पसंद है, जो अपने मुतल्लिक की गौर करता रहता है, और उसने तमाम ड्यूटी वज़ीरों की और अपने मुलाजमीन की वो यही लगाई हुई है कि मेरी तारीफ करो और अपोजिशन को गालियां दो। उन्होंने कहा कि आप गलत आदमी पर एतबार कर रहे हैं, ये शिकार है तोहम परस्ती का, ये नहीं आएगा। उस वजह से वो आप दफना दो। उन्होंने ये किया कि उन लोगों की बातें मानी, अपोजिशन के लोगों ने हमदर्दी की। मरियम नवाज तो बच्चियों को गोद में लेके रो पड़ी। हर इंसान जो है वो घर में बैठा हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जो जुल्म उनके साथ हुआ, बच्चियों के साथ हुआ, उन्होंने दफना दिया। और इन्होंने कहा हंसते रहे कि देखा मेरी शर्त पूरी हुई। मेरा मतलब है कि डेड बॉडीज के साथ शर्त लगाना ये इसी का काम है। ये पता नहीं किस जुल्म का शिकार ये कम्युनिटी हुई है, या जो अदारा इसको लेकर आया है वो किस जुल्म का शिकार इसने किया है इस कम्युनिटी को, इस 22 करोड़ अवाम को। और वो अदारा जो है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से जुल्म का शिकार होगा कि अगर तुम जुल्म करोगे, जालिम को कोई बख्शता नहीं, मजलूम की हा जो है वो जालिम को नहीं छोड़ती। इसलिए मैं ये समझता हूँ ये गए और जाकर इन्होंने हंसते हुए उन्हें कहा कि वाह 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 आपने ठीक किया, ये दफना दिया और हम ये करेंगे वो करेंगे। ये फजूल किस्म की बात थी। मैं ये समझता हूँ कि जो इसे लेकर आए नेहल आदमी को, जिसको कुछ पता नहीं कि इंसानियत क्या है, जिसको कुछ पता नहीं कि डेड बॉडीज़ क्या चीज़ है, जिनको ये पता नहीं कि जनाजे क्या होते हैं, जिसको ये पता नहीं कि इकॉनमी क्या है, इस शख्स के आने के बाद जो इन्हें लेके आए, ये जुल्म जो ये कर रहा है, ये अकेला शख्स है, ये भाग जाएगा। लेकिन वो अदारा जो इसे लेके आया, जिसकी वजह से यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ बच्चे जो हैं बगैर तालीम के हैं, यहाँ जुल्म हो रहा है, इसलिए वो अदारे पे जो जुल्म का शिकार इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ कि उस अदारे को सोचना चाहिए। ठीक है भाई साहब, ये आपने कोयटा और हज़ारा के वाक़े के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है कि हमारा वज़ीर आज़म बड़ा बेरहम और बेवकूफ़ है, ये आपके हम उसका नतीजा निकालते हैं। अब एक दूसरा सवाल भी आपसे हम करना चाह रहे हैं कानूनी टीवी की तरफ से कि ये जो मीडिया का प्रोपेगंडा है कि जी PDM की तहरीक जो है वो ज़वाल पजीर है, वो अपनी मौत आप मर गई है, ये मीडिया प्रोपेगंडा कर रहा है और हुकूमत के ईवानों में ये चीज़ें चल रही हैं, इसके बारे में आप भी चूँकि ANP के साबिक पाकिस्तान के सदर हैं, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मलिक साहब बात सीधी है कि PDM के मामला ना फैसले करने हैं मीडिया ने, ना फैसले करने हैं किसी गवर्नमेंट के वजीर ने, ना फैसला करना है किसी और अदारे ने, फैसला करना है PDM की 11 जमातों ने, और फैसला करना है 22 करोड़ आवाम ने। मैं ये समझता हूँ कि PDM दिन ब दिन वो ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके जलसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसकी वजह के लोग इन्वॉल्व इसलिए हो रहे हैं कि लोग जुल्म का शिकार हैं, भूख का शिकार हैं, लोग बेरोज़गारी का शिकार हैं। इसलिए वो लोग ये जो बातें बना रहे हैं, ये इसलिए बनाई जा रही हैं कि इनकी ड्यूटी है कि ये साबित करो कि PDM फेल हो गई, और PDM वाले जो
सरबराहान 11 पार्टीज हैं, वो एक मेच्योर्ड पॉलिटिशियंस हैं। उन्होंने ये फैसला करना है कि आया ये मौसम, ये आया इस मौसम में हम मार्च कर सकते हैं, आया इस सर्दी में 1,00,000 2 लाख बंदा वहाँ बिठा सकते हैं। इन्होंने बहुत अकल का फैसला किया कि भाई अभी हम ज़रा देखें, मौसम के हालात देखें कि वहाँ पर किस मौसम में हम लोग लेके जा सकते हैं। और उस दौरान उन्होंने जलसे करने शुरू किए, रैलीज की लाखों की तादाद में। अब भालपुर का जलसा जो है तारीख में कभी इतना बड़ा जलसा हुआ नहीं। लाहौर के जलसे के मुताल्लिक ये फजूल बातें करते हैं, लाहौर में भी सर्दी में बहुत बड़ा जलसा हुआ था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंटेलिजेंस जो इसको सपोर्ट कर रही है, ये शख्स सिर्फ और सिर्फ जिस वक़्त भुट्टो मरहूम ने इंटेलिजेंस के सर पे इस मुल्क को रूल करना शुरू किया और सियासी कारकुनों और अपने साथियों को उसने बिल्कुल छोड़ दिया और उनके सर पे हुकूमत करनी शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल हुआ। तो इस शख्स ने तो शुरू से ही इंटेलिजेंस के सर पे हुकूमत करनी शुरू की है, और जो इंटेलिजेंस कहती है और ये वही करता है। और बाकी ये नहीं कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये शख्स खुद कहता है कि मैं जो इंटेलिजेंस कहती है मैं उसकी खबरों पर, उसके कहने पे अमल करता हूँ, और वो मुझे पता होता है। अब जो शख्स इस मुल्क में इंटेलिजेंस के कहने पे, और हमारी इंटेलिजेंस जो है अल्लाह रहम करे, जो उसके हालात हैं, चलो सर, मैं उसके कहने पे मैं बात खत्म कर, उसके कहने पे अगर जो हुकूमत करेगा तो ना वो हुकूमत चल सकती है ना वो मुल्क चल सकता है। हाँ, लेकिन सर पीडीएम के पार्ट में भी आप देखें कि पीडीएम ने पहले कहा है कि हम जनवरी में करेंगे, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इस्तीफे होंगे, जनवरी में करेंगे, फिर फरवरी में, मार्च, अब अप्रैल तक का राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि अप्रैल भी हो सकता है। तो देखें, जिन्होंने धरने देते हैं, इंडिया में किसान धरना दे के बैठे हैं इसी सर्दी में दिल्ली में, और ये जो आपने कोयटा वाला धरना देखा है जो मुश्किल वक्त में दिया है, तो ये पीडीएम भी थोड़ी अपने पीछे पीछे चल रही है, जिससे अवाम मायूस हो रहे हैं। मलिक साहब, बात अवाम के मायूस होने की नहीं, बात जो किरदार कशी हो रही है उसके नतीजे में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना चंद, वो समझ रहे हैं कि जी लोग मायूस हो रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि लोग खुश हैं इस बात पे कि अक्लमंद हैं ये लोग। इन्होंने जनवरी फरवरी से हट के अप्रैल तक आ गया क्योंकि उस वक़्त मौसम इस काबिल होगा। मैंने सारी पिछली मूवमेंट्स देखी हैं, मूवमेंट्स चलती हैं मौसम के हिसाब से। ये जो इंडिया की आप मिसाल देते हैं, वहाँ पर किसान इसलिए अभी तक मार खा रहे हैं कि वहाँ सर्दी बेपनाह है, वो अभी तक। नहीं तो वहाँ पर अगर मौसम सही होता तो इतना किसान आ जाता सड़क पे कि मोदी को समझ आ जाती कि क्या हाल है। इसलिए इन्होंने बड़ी अक्लमंदी की कि ये अप्रैल पे बात ले गए। और इन्होंने, इनका मसला हुकूमत का, मैं आखिरी बात आपको बातें बताता चलूँ कि हुकूमत का मसला ना इस वक्त इकानमी का है, ना रोटी का है, ना चीनी का है, ना आटे का है, ना फॉरेन पॉलिसी का है, सिवाय इसके कि तमाम वज़ीर आज़म से लेकर और तमाम वज़रा और तमाम जो इसके एडवाइज़र्स हैं एक ही काम पे लगे हुए हैं कि ये अपोजिशन ने ये किया, सिवाय इसके कि नवाज शरीफ ने ये किया। इनका मसला नवाज शरीफ बना हुआ है। और एक बात मैं आपको बताऊं और कौम को भी, ये तमाम पाकिस्तान में सियासत जो है ये नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूम रही है। इसे ये समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर मियां नवाज शरीफ है और उसकी बेटी मरियम नवाज है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने ये बड़ा वाज़े कर दिया कि ये पीडीएम की हिकमत अमली है कि वो टाइम को किस हिसाब से उन्होंने कब इस्तीफे देने हैं, कब लॉन्ग मार्च करना है। तो भाई साहब आपका हम बहुत शुक्रिया करते हैं। नाजरीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे हम भाई साहब से मुलाकात की दरख्वास्त करेंगे। थैंक यू सर।